show, Revealing the Local Heroes. Here is where we introduce you to the people performing extraordinary activities in their respective fields. We share stories that inspire, impact our lives, and compel us to think. So, if you're keen to know who is the next local hero, kindly subscribe to our channel and share it with your friends and family so that our local heroes reach out to every house there. Today, we have with us Amrut Deshmukh, who is renownedly known as a booklet guy, a chartered accountant by profession, the person whose motive is to make India read. He picks up the best sellers and converts them into audio and text summaries that are just 20 minutes long. मतलब एक बुक जो 200-300 पेजेस का होता है और उसको देख के ही हम सोचते हैं कि नहीं ये बुक तो मुझे पढ़ना ही नहीं है, वो ऐसे बुक्स को पढ़ते हैं, उनको 20 मिनट्स के ऑडियो में और शॉर्ट टेक्स्ट समरीज में कन्वर्ट करते हैं. He wants that India should cultivate habit of reading. So it's an honor to have an entrepreneur who wishes to make India read. Welcome to the show, Amrut. Thank you so much, Sampradhi. Very excited, and thank you so much for helping me to spread my mission, Make India Read, through your platform. So you're actually doing a favor on me, not other way around. Thank you. So let's start with our question answer session. So Amrut, tell me why you started with this concept. मतलब क्यों लगा आपको कि ऐसा कोई मिशन हमने स्टार्ट करना चाहिए जहाँ पे इंडिया will cultivate habit of reading? One reason was, I think, music is the new smoking. I mean, I'm not against music. Music is a great art. But nowadays, just because it is freely available on YouTube and because it is in unlimited supply, most of us don't know where to stop. Yeah, नहाते वक्त YouTube, खाना खाते वक्त YouTube, पढ़ाई करते वक्त YouTube, TV देखते वक्त YouTube. Yeah, I'm not against. Even I watch YouTube, no doubt about it. So I started studying these apps. Why are they so addictive? What have they done to us? Because these are all new behaviors. We did not do these things 5-10 years ago. These are all new habits. Yeah. Why even if there is no ting notification, still our hand goes to open WhatsApp? What has happened to us? How can everybody do the same thing? Right? That means they have done something with us. So I studied many books like Irresistible, Indistractable by Nir Eyal, and I learned that there are two types of addictions. Substance addiction you consume, cocaine, drugs, smoking, which is very visible. The drug addict we can easily spot him. There are some dark under eye circles. He behaves very curiously, but there is another kind of addiction called behavioral addiction. They are changing our behavior by playing with our psychology. Some simple features I'll point out, and you'll come to know how we get addicted to these apps. There is an autoplay button which is by default on YouTube, and we think that we watch videos which we want on YouTube. Statistics, YouTube itself says 92% of the videos watched by the entire YouTube community are those which are suggested by YouTube, not searched by you and me. Right. This is amazing. I mean, we are watching what they want. We are not watching what we want. So obviously they will show us what makes them more money, which is more beneficial for them. And we think that we are doing at our own will. And I was surprised to know all these things, that these are awesome persuasive technologies, but you are being used unethically. Okay. So I thought I should use all these persuasive technologies for a better purpose, maybe reading habit. This was one thing. So to deviate the attention of the youngsters from these stupid videos and addictive apps. Second thing, most of my friends around me used to buy books, but never bothered to read them. We all boast a huge collection of books at home. So I realized that books and reading habit are not synonymous. It's not about giving books for free at a very cheap rate or book summaries for free. It was about one step ahead of it to motivate you to read. There is a difference between reading habit and books. It's like having dumbbells at home and lifting those dumbbells. दोनों में फर्क है. Right. So
these are the two reasons main. So I started believing, and my strong belief system is that if I'm not reading, I'm not changing, and if I'm not changing, I am not growing. So, and this, because of this strong belief, I have a burning desire to cultivate the habit of reading amongst the youth of India, like you guys. Yes, that's absolutely true. Actually, if we read, we change our perspectives, and if we change, we grow. That's very true, Amrit. So, Amrit, tell us, when did you started with this, and how was the beginning? Like generally, we say, शुरुआत तो बहुत difficult होती है. So, how was it for you actually? Yeah, I had gone through 3 failed startups. One was very clear that I will never go back to a job market. I did job for many years and then started my own startup, but failed 3 times in 3 different startups. So I went into chronic depression, and because of that, one failed relationship as well. And so one fine day, one of my CA friends called me up just to help me, to cheer me, to pull me out of my depression. I was not talking to anybody, not socializing, locking myself inside the room for weeks and months, because there was direct attack on self-esteem, that because of my failed entrepreneurship, she left me. And I know some ugly thoughts of ending my life had also come once. So he called me and said that, "Arey, ek picture hai ye Bahubali, Bahubali 1, it was August 2015. चल देखने जाते हैं." So we reached the movie theater 15 minutes before the show time. तो क्या करे, 15 मिनट टाइम पास करना है. So I was reading a book that week, The 7 Habits of Highly Effective People by Stephen Covey, very famous book. और उसको मेरा एक्सप्लेनेशन इतना पसंद आया, और ये अमृत तूने इतने अच्छा एक्सप्लेन किया है, मुझे ऐसा लगा कि वो ऑथर को मैं मिला विदाउट रीडिंग हिज बुक. जो मेन मैसेज जो ऑथर देना चाहता है बुक से, वो मुझे समझ में आ गया थ्रू योर एक्सप्लेनेशन, थ्रू योर नरेशन. यू आर अ ग्रेट एक्सप्लेनर. एंड ही सेड दैट तू एक काम कर, जितने भी बुक्स पढ़ता है ना, उसके नोट्स लेता होगा तू डायरी में, स्टार्ट सेंडिंग पिक्चर्स ऑफ दोस नोट्स और बुलेट पॉइंट्स व्हाटएवर ऑन माय व्हाट्सएप, so that your reading habit can benefit me. That last line was like Akashvani for me. Wow, मतलब खुद के लिए तो सब लोग पढ़ते हैं, but if I read, which I love reading, it's my passion, and if that can benefit my friend, सोने पे सुहागा. And that was the moment of excitement or eureka moment. Since then, a stupid conversation at the Bahubali theater, never thought it will take a shape of a national movement one day in the form of Mission Make India Read. So we can say कि बाहुबली भले मतलब एक रीजन बन गया आपके लिए, आपका एंटरप्रेन्योरशिप अगेन स्टार्ट करने के लिए. जी जी. एंड इंटरेस्टिंग पार्ट इज, पिक्चर शुरू हो गई, और जो कि अभी कुछ नया दिमाग में आ गया था, वो सो एक्साइटेड, वो तो पिक्चर देखने में एकदम ये हो गया, इन्वॉल्व हो गया, मजे ले रहा था. और आई वॉज गेटिंग रेस्टलेस कि कब इंटरवल हो रहा है और मैं इधर से निकल रहा हूँ. Can you believe I found Bahubali boring? Such a blockbuster. Yes. And still I haven't watched the second part yet. मैं इंटरवल से भाग गया, दोस्त को झूठ बोला कि मुझे टॉयलेट जाना है, घर भाग गया, उसका ही बाइक लेके भाग गया, और I wanted to check on internet ऐसा कोई कर रहा है क्या. Nobody was doing. And then I decided to execute this idea within 1 week. I was about to ask you कि आपने सेकंड पार्ट देखा कि नहीं देखा फिर अभी तक? अभी तक नहीं देखा. नहीं देखा. बाहुबली 2 देखी, बाहुबली 1 अभी तक आधी देखी मैंने. अच्छा हाँ. ओके, सो अमरुत, टेल अस, आपने अभी तक कितने बुक्स पढ़े हैं और कितने बुक्स को ऑडियो और टेक्स्ट में कन्वर्ट किया है? हाँ, जब से होश संभाला है, मैं तो बचपन के बुक्स तो मैं नहीं काउंट करूंगा, चाचा चौधरी एंड तेनालीरामन, रविंद्रनाथ टैगोर की कहानियां, मालगुडी डेज, एलिस इन वंडरलैंड, स्नो वाइट, ये सब तो, विक्रम बेताल, वो मैं नहीं काउंट करूंगा. तो जब से होश संभाला है, मतलब 10th के बाद में नॉन फिक्शन सीरियसली पढ़ने लगा. माय फर्स्ट बुक वाज रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी, गिफ्टेड बाय माय एल्डर ब्रदर. अगर वहां से मैं अगर काउंट अप्रोक्सीमेटली करने लगा तो तकरीबन 1490 बुक्स पढ़ के हो गए हैं. मोस्टली बेस्ट सेलर्स बुक्स ऑफ द वर्ल्ड, इंडियन, फॉरेन ऑथर्स. उसमें से तकरीबन 600-700 के समरीज मेरे लैपटॉप में रेडी है इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट. जरूरी नहीं कि वो सब मैंने बनाए, बट अभी बहुत सारे लोग मुझे हेल्प करते हैं बनाने में. एंड उसमें से आई थिंक 300 बुक समरीज मैंने ऑडियो में भी रिकॉर्ड किए, और वो बुकलेट सर्वर में रेडी है, जो कोई आप पढ़ सकते हो, सुन सकते हो. सो दिस इज द रेशियो.
क्योंकि सब 700 समरी जो टेक्स्ट में वो मैं सब रिकॉर्ड नहीं कर सकता एक साथ. आई कैन रिकॉर्ड मोर देन 1 summary a day because my throat starts spinning and I have a limitation. So धीरे 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 होगा. So अगले 4 साल का सब प्रोविजन रेडी है. मतलब फ्यूचर फोरकास्टिंग आपका पूरा रेडी है, फ्यूचर प्लानिंग रेडी है. जी. सो अमृत, मतलब आप सीए हो प्रोफेशन से, मतलब आपने सीए कोर्स किया है, सीए डिग्री है आपके पास. आपको कभी ऐसे नहीं लगा दैट यू शुड परसिव योर करियर इन दैट स्ट्रीम? मतलब लोगों का ऐसे पर्सपेक्टिव रहता है ना कि नहीं, अभी आपने इतना रिनाउंड डिग्री लिया है, यू मस्ट हैव डन लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क, पेशेंस, स्ट्रगल, सैक्रिफाइसेस. तो ये सब करने के बाद जब आपने आपका एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट किया, आपको कहीं पे ऐसे नहीं लगा कि नहीं, आई शुड गो देयर और आई शुड स्टिक इनटू दैट फील्ड, उसी में कुछ करते हैं, ऐसा नहीं लगा आपको कभी? देयर इज ऐसा कोई कायदा नहीं है. जैसे रिलेशनशिप्स में कायदा होता है कि इसके साथ शादी करना है, तो बस ऐसा नहीं बोल सकते कि मुझे कुछ नहीं मिल गई तो अभी मैं इसको छोड़ दूंगा. ऑफ कोर्स आपको पता है नतीजा क्या होगा, यू विल बी बिहाइंड द बार्स. बट इन केस ऑफ करियर्स यू हैव द चॉइस. हु सेज दैट जस्ट बिकॉज सीए करने के लिए मैंने टाइम और एफर्ट डाला है, बट इवन इफ मैंने मुझे कुछ नया मिला है जो मुझे ज्यादा एक्साइट कर रहा है, बट पास्ट में मैंने ये सब डाला है मेहनत, तो मुझे यही कंटिन्यू करना है पूरी जिंदगी. व्हाई टेक पास्ट एज अ रेफरेंस पॉइंट? जो भी सीखा है वो क्या वेस्ट जाने वाला है क्या? सीए का नॉलेज क्या वेस्ट गया है? ऑफ कोर्स नहीं गया है. अभी भी आई एम एन आउटडेटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट. 4-5 साल हो गए मैंने अभी तक इनकम टैक्स और रेक में को हाथ नहीं लगाया. जीएसटी क्या होता है, नया एक्ट है, हमारे टाइम तो था नहीं. बट अभी भी जो भी मिलता है, he will not dare to cheat me when it comes to money matters because they assume that a chartered accountant knows everything about money. Right? Although I don't know. And of course I will never, I'm so confident I will never go bankrupt because I will not make those basic financial mistakes which a typical businessman does. Yeah. So वो तो फायदा है ना. So just I found something new which I think I should give it a try. अगर नहीं चला तो सीए की डिग्री तो है ही. I can fall back. It is like a cushion, a safety net to fall back, right? And that gave me the confidence to take risk, right? In fact, CA degree gave me the confidence, a safety net to try something that nobody has tried till now. So वो भी तो फायदा है CA का. Yeah. एब्सोल्युटली करेक्ट. पर मतलब कैसा है ना, हमारे सोसाइटी में एक बहुत, वी कैन से इट्स अ मिथ या रॉन्ग बिलीफ है कि आपने जिस डिग्री, मतलब जिस डिग्री में आपने करियर किया है या आपने जो डिग्री को परसिव किया है उसी में आपने कुछ करना चाहिए. आप अलग करते हो ना तो लोग मतलब ऐसे पूछते हैं कि अच्छा फिर सीए किया है क्यों जब आपको उसमें कुछ करना नहीं था. मतलब आई फील यू आर द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दैट. वो लोगों के लिए आप बेस्ट एग्जाम्पल हो. I think this mentality comes when we assume कि डिग्री लेने के बाद हमारा एजुकेशन खत्म हो गया. भाई लर्निंग नेवर स्टॉप्स. अगर उसके बाद तुम कुछ नया सीखते हो और उसमें अगर तुमको ज्यादा दिलचस्पी आ रही है तो गो फॉर इट. एजुकेशन नेवर स्टॉप्स, राइट? I read a book written by Amir Khan's biography, and 12th के बाद उसने सबको घर वालों को बोला कि अभी मुझे कॉलेज नहीं जाना है, मुझे ये सिनेमाटोग्राफी, डायरेक्शन, एक्टिंग इसमें करना है, स्टोरी टेलिंग, क्रिएटिव इंडस्ट्री में जाना है. तो सब लोगों ने बोला करो तुम, पर ग्रेजुएशन कंप्लीट करो और उसके बाद करो. तो उसने जो जवाब दिया, इतना अच्छा जवाब दिया कि मैं एजुकेशन छोड़ नहीं रहा हूँ, मैं रियल एजुकेशन शुरू कर रहा हूँ ऐसे फील्ड में जो जिसमें मैं पूरी जिंदगी बिताने वाला हूँ. आई जस्ट लव दिस पार्ट ऑफ दैट बुक, राइट? सो आप कौन से फील्ड में एजुकेशन ले रहे हो डजंट मैटर. कंटिन्यू, वेदर इट इज फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन. यू वोंट बिलीव समृद्धि, मेरे एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन के 15 साल, तो स्कूल के, कॉलेज के, ये सब मिला के मैंने जितना सीखा है ना, और पिछले 4-5 साल में जो मैंने बुक्स पढ़े हैं, इट इज मच मोर what I learned in last 4-5 years from these general books than what I learned in those 15 years of formal education, honestly. वेरी ट्रू. मतलब ये मेंटालिटी चेंज करने की जरूरत है. वी नीड टू अपग्रेड आवरसेल्व्स, कहीं ना कहीं वी नीड टू अपग्रेड आवर व्यूज इवन. Right. सो अमृत, टेल अस, अगर कोई न्यू या फ्रेश रीडर है तो उसने कैसे डेवलप करना है ये हैबिट रीडिंग का, और आप कौन सा एक बुक रिकमेंड करोगे मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम रीडर्स? See, I have a very clear answer for this. The fact that you asked this question, that means we are taking reading too seriously.
इनफैक्ट मैंने किताब लिखी है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव रीडर्स, आपने सुना होगा। उसकी पहली हैबिट का नाम है डोंट टेक रीडिंग टू सीरियसली। आई विल काउंटर क्वेश्चन द सेम क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड मी बट इन अ डिफरेंट वे। एक एक नया नया लड़के या लड़की को बॉलीवुड के पिक्चर देखना शुरू करना है, तो आप कौन सा फर्स्ट पिक्चर रेकमेंड करोगे देखने? यू आर लाफिंग राइट? Right. आई मीन क्या है, क्या सवाल है? कोई भी देख यार, नहीं पसंद आई तो चेंज करो, शाहरुख खान की देखो, आमिर खान की देखो, ऋतिक की देखो, रानी मुखर्जी की देखो, जो भी है, राइट? सेम इज द केस विद बुक्स। डोंट टेक इट टू सीरियसली। जो भी पढ़ी हुई बुक है, हम दोस्तों के घर जाते हैं, टेक अ लुक एट देयर कलेक्शन। इफ यू फाइंड सम इंटरेस्टिंग नेम, गो थ्रू द इंडेक्स। अरे ये कुछ नया लग रहा है, कैन आई बोरो दिस बुक फॉर यू फ्रॉम यू? Check it out for 5 days. If you don't like, return it. Read the first 10 pages. Yeah. Okay. The old adage goes that don't judge the book by its cover. Yes, I agree. Never judge the book by its cover. Judge it after reading 10 pages. Fair enough. तो ऐसे कितने सारे बुक्स है जो मैंने 10 पेजेस पढ़ के छोड़ दिए क्योंकि नहीं, मुझे मजा ही नहीं आया। भले ही वो मेरे दोस्त ने कितने भी स्ट्रांगली रिकमेंड किया हो। पिक्चर में ऐसा होता है ना, अरे दोस्त ने तो बोला पिक्चर बहुत अच्छी थी पर मुझे क्यों नहीं मजा आ रहा है? ठीक है, वी डोंट ब्लेम आवरसेल्व्स। उसको पसंद आई होगी, मुझे नहीं आई। सेम इज द केस विद बुक्स। सो चिल, डोंट टेक इट टू सीरियसली। ऐसा कोई बिगिनर्स बुक ये वो, हाँ कुछ कुछ बुक से लैंग्वेजेस टफ रहते हैं, इट विल कम टू नो इन फर्स्ट फ्यू पेजेस। यू डोंट हैव टू बाय द बुक, एवरी बुक टू रीड इट। आजकल वी आर अ हाइपरली कनेक्टेड वर्ल्ड। जस्ट पुट मुझे एक बुक चाहिए था लॉकडाउन में, सेपियंस बाय युval नोआ हरारी, बहुत फेमस बुक है। इज अ फेमस हिस्टोरियन फ्रॉम इजराइल। तो व्हाट्सएप पे एक स्टेटस करके एक फीचर आया ना, 24 घंटे के लिए वो मैसेज रहता है, हमारे कॉन्टैक्ट्स को दिखता है और फिर वो चला जाता है। तो मैंने आई जस्ट रोट आई एम लुकिंग फॉर दिस बुक रिटन बाय युval नोआ हरारी, सेपियंस। अगर किसी के पास है तो प्लीज मुझे बताओ। विद इन 48 आवर्स द बुक वॉज इन माई हैंड्स इन द लॉकडाउन। तो कहीं ना कहीं यहीं पे बुक रहती है, इन द रेडियस ऑफ 5-10 किलोमीटर्स। एंड वी से वी आर इन कनेक्टेड वर्ल्ड, इंटरनेट, फेसबुक, उसका यूज नहीं करते हम। घर पे वड़ा पाव बना, वड़ा बटाटा वड़ा का फोटो डालेंगे स्टेटस पे, उससे क्या होने वाला है? लेट्स मेक यूज ऑफ दीज ब्यूटिफुल टूल्स व्हिच आर फ्रीली अवेलेबल टू अस। नॉट टूल इज अ टूल ना। एक चाकू सलाद काटने को भी यूज होता है, किसी का खून करने के लिए भी यूज होता है, और सर्जन उसको ऑपरेशन करने के लिए भी। सी, वन टूल, डिफरेंट यूजेस, बाय इंटेंशंस आर डिफरेंट। सेम सोशल मीडिया इज अ टूल, इट्स अप टू आवर इंटेंशन हाउ टू यूज इट। How to use it. Absolutely correct. और शायद यही टूल का यूज आपने किया है और आपने आपका ऐप बनाया है, right? राइट, बुकलेट। Yes, booklet. So tell us something about that app. जी, सो एज आई सेड, मुझे जब आइडिया आई, वो बाहुबली थिएटर से मैं निकला तो घर जाके शुरू किया काम कि मुझे आइडिया एग्जीक्यूट करना है। तो सोचा कि मुझे तो आईटी का कुछ पता नहीं, सीए हूँ, जावा क्या होता है, वेबसाइट कैसे बनाते, कुछ भी नहीं पता है। तो मैंने सोचा कि शुरू करते हैं, जो है हमारे पास उसको लेके शुरू करते। लेट्स नॉट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट, कैपिटल आएगा, फंडिंग आएगा, फिर ऐप बनाऊंगा। नो, गेट स्टार्टेड विथ वॉट एवर यू हैव ऑलरेडी। यू ऑलरेडी हैव अ लॉट, राइट? सो मैंने सोचा व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे शुरू करता है, लेट्स लेट्स टेस्ट दिस आइडिया ऑन व्हाट्सएप। तो उन दिनों में अब्दुल कलाम जी had just passed away. So as a tribute to him, I summarized his book Wings of Fire, अग्निपंख। उसकी अच्छी 20 मिनट की समरी बनाई और मेरे 10 दोस्तों को व्हाट्सएप पे दे दी, और बोला कि अगर आप पढ़ो, पसंद आई तो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करो, मेरा नंबर दो, आई एम ऑल योर्स, आई विल रीड फॉर यू। Within 1 week, there were 1,000 people who contacted me, requested me on WhatsApp that we are interested in your book summaries, and they were not my direct friends, they were my friend of friends. तो वहां से शुरू हुआ। Within 8 months, there were 2 lakh people on my WhatsApp. The whole day I was sharing book summaries, and then अचानक से एक दिन WhatsApp का मैसेज आया मुझे, you are banned from using WhatsApp. क्योंकि इतने मैसेजेस में भेज रहा था, क्योंकि 20 मिनट के टेक्स्ट थे तो मैं 3 पार्ट में भेज रहा था उसको, और इतने 2 लाख कॉन्टैक्ट्स, इमेजिन। उनको लगा मैं कुछ झोल कर रहा हूँ, कुछ स्पैमिंग कर रहा हूँ या चीप मार्केटिंग कर रहा हूँ। उन्होंने मेरा नंबर बैन किया। फिर मैंने तुरंत पैनिक हो गया कि अभी 2 लाख लोग उधर रुके हैं, वेडनेसडे आ रहा है, हर वेडनेसडे को मैं नई समरी भेजता हूँ। तो मैंने सोचा कि कोई अभी इट इज द राइट टाइम टू मेक एन ऐप।
खुद का प्लेटफॉर्म होना जरूरी है, क्योंकि व्हाट्सएप तो चला गया. एंड आई अप्रोच फ्यू ऑफ माई आईटी फ्रेंड्स जो यू आर जस्ट पास्ड आउट इंजीनियर्स, और बोला कि देखो ऐसा शुरू किया है, मुझे नहीं पता इसमें से पैसा आएगा नहीं आएगा, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, बट आई थिंक आई एम मेकिंग अ मीनिंगफुल कॉन्ट्रीब्यूशन टू माई मदरलैंड. I stand for the higher purpose of reading habit. Book summaries is just an excuse कि वो बुक्स को जिंदा रखना है लोगों के जिंदगी में, डेली रूटीन में. तो क्या तुम मुझे इस मिशन में हेल्प करोगे क्या? So see the power of higher purpose, the power of contribution without charging a single rupee. These IT kids helped me to come out with a nice mobile app. उसको हमने बुकलेट ऐसा नाम दिया. बुकलेट इज अ स्मॉलर वर्जन ऑफ बुक, इज कॉल्ड बुकलेट. और इसलिए लोग अभी प्यार से मुझे बुकलेट गाय के नाम से जानते हैं. गाय मतलब इंग्लिश वाला गाय. और आज वो 10 दोस्तों से जो शुरू किया था, आज 20 लाख रीडर्स who are enthusiastically reading or listening with me on Booklet app, which is freely available on Play Store, Apple Store. No irritating ads, no subscription fees, no donation button, absolutely free. I don't have any commercial aspirations whatsoever. So that's a huge number to 200 से इतना ड्रास्टिक अपवर्ड आपने रेशियो ये किया है, मतलब अमृत इट्स रियली कमेंडेबल. मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा कंसेप्ट एक्चुअली हमने देखा है, आपने इंट्रोड्यूस किया है फर्स्ट टाइम. मतलब नोबडी मस्ट हैव एवर थॉट कि ऐसा भी हम कुछ कर सकते हैं, बट यू आर शोइंग कि नहीं, कुछ भी हो सकता है. जस्ट यू शुड हैव डेडिकेशन बिहाइंड इट, एक आइडिया और उसका एग्जीक्यूशन, दैट इज इम्पोर्टेंट. आई थिंक आपने बहुत अच्छा बोला कि नो बहुत अलग चीज है, और जिस तरीके से मैंने उसको एग्जीक्यूट किया. सी हम टिपिकली इंस्पिरेशन ना हमारे बिजनेस इंडस्ट्री से लेते हैं, या फिर जो फील्ड में हम, एक्टर हमेशा दूसरे एक्टर से इंस्पिरेशन लेगा, सिंगर हमेशा दूसरे सिंगर से इंस्पिरेशन लेगा. मैंने वो गलती नहीं की. मैंने क्या किया, मैं बिजनेस या स्टार्टअप्स को छोड़ के बाकी लोगों से इंस्पिरेशन लिया कि ऐसे क्या क्या एग्जाम्पल्स है इंडिया में या इंडिया के बाहर जहां पे कोई भी मार्केटिंग कैंपेन नहीं हुआ, एड्स पे खर्चा नहीं किया, फिर भी लोग जुड़ते गए. और मुझे हमारे आंखों के सामने एग्जांपल्स दिखने लगे. वन एग्जांपल, अन्ना हजारे's अनशन. आई डोंट रिमेम्बर द ईयर. याद है वो उस दिन उस कैसे माहौल था, पूरा हिंदुस्तान एकजुट हो गया था, ना हिंदू था ना मुस्लिम था, और एक हायर पर्पस टू इरेडिकेट करप्शन फ्रॉम इंडिया. हम इस एक आदमी के लिए who did not have a great personality, who was not a great orator, सिंपल आदमी, सफेद टोपी धोती पहन के बैठा था वहां पे, और सब लोग हम उसको सपोर्ट कर रहे थे. आई ड्रीव. तो क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज देयर वाज अ हायर पर्पस. द व्हाई वाज वेरी स्ट्रांग टू किल करप्शन. वहां से मैंने सीखा कि अगर मेरे पास बहुत स्ट्रांग व्हाई है ना, तो फिर लोग मेरे बारे में बात करेंगे. मुझे विज्ञापन पे खर्चा करने का जरूरत नहीं है. राइट राइट राइट, वेरी करेक्ट. मतलब सच में आपने एग्जांपल पे बहुत रिलेटिंग दिया, अन्ना हजारे जी का एग्जांपल. मतलब यस, यू को रिलेटेड द थिंग्स. यस. सो अमृत, टेल अस, आपने जो मिशन स्टार्ट किया है मेक इंडिया रीड, आपको क्यों लगता है इंडिया ने रीड करना चाहिए, एंड व्हाई यू फील, जैसे आपने बोला कि इफ यू विल नॉट रीड यू विल नॉट ग्रो, यू विल नॉट चेंज, तो आपको क्यों लगता है कि रीडिंग से यू कैन ग्रो, यू कैन चेंज? See, we always learn from other people, right? Always. There is nothing called original learning. ऐसा नहीं. Of course, a new learning is also based on somebody else's learning, right? अभी बुकलेट ऐप बना है, अगर एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर ही नहीं रहता तो ऐप नहीं होता. फिर एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर होता ही नहीं अगर मोबाइल फोन नहीं होते. आर यू गेटिंग पॉइंट? सो हर इनोवेशन पहले इनोवेशन पे बेस्ड होता है. सो वी ऑलवेज लर्न फ्रॉम अदर पीपल. Now, there are various ways of learning from other people. You might argue that ठीक है, मुझे बुक्स नहीं पढ़ना है, मैं लोगों को सुनूंगी, वहां से भी सीखने को मिलेगा. यस, ऑफ कोर्स मिलेगा. देन गो bring Steve Jobs to me. I want to learn from him. I want to talk to him. Is it possible? No, he's no more. I will read his autobiography. जाओ नरेंद्र मोदी से मुझे अपॉइंटमेंट फिक्स करो, मुझे उनसे सीखना है. बहुत बहुत बड़ा आदमी है, जाओ. he is too busy. I will read his biography. So this is, I think, the best medium जहाँ पे बड़े बड़े इन लोगों के 20-20, 25-25 साल के एक्सपीरियंस अगर मुझे 10-15 दिनों में अगर सीखने को मिल रहे हो, और क्या चाहिए? राइट? दैट टू एट माय ओन लिबर्टी. अगर मुझे नहीं पसंद है तो मैं छोड़ दूंगा. राइट? जैसे किसी के साथ बात कर रहे हैं तो बहुत बार हमारी इच्छा नहीं होती, फिर भी हमको सुनना पड़ता है. बुक में ऐसा भी नहीं, हम बंद कर सकते हैं जब चाहे तभी. राइट.
ना, हम जब चाहे उस ऑथर को चुप कर सकते हैं, जब चाहे हम उसको सुन सकते हैं, और क्या चाहिए? राइट। एंड मैं नहीं कहता हूँ कि बुक पढ़ना मतलब अभी आज सिर्फ हाथ में बुक पढ़ना मतलब पढ़ना है, नो, दैट आई एम नॉट स्टबर्न एनीमोर. द गैमेट ऑफ रीडिंग हैज एक्सपैंडेड. Now, listening to podcasts, listening to audibles, listening to my book summaries, they're all part of reading now. Okay, just because the sense is changing from eyes to ears, that doesn't mean the knowledge will not go inside our minds, right? इसलिए एक ने मुझे बोला था, तू बोलता है मेक इंडिया रीड और तू सुना रहा है बुक समरीज ऑडियो में, मतलब हाँ, जस्ट गो बाय द स्पिरिट, डोंट गो बाय द लिटरल मीनिंग, राइट? जस्ट हैव टू एब्जॉर्ब द नॉलेज. तो आंखों से जाए या कानों से जाए, डजंट मैटर, राइट? स्टीव जॉब्स का इंटरव्यू आप यूट्यूब पे देख रहे हो, तो इट इज एज गुड एज रीडिंग अ पार्ट ऑफ हिज बायोग्राफी, राइट? Yes, very true. So मतलब knowledge is important means इतना important नहीं है. Knowledge आपको मिल रहा है, that is the ultimate aim, right? Right. So Amran, tell us, आप ये सोशल मीडिया का जो डिस्ट्रैक्शन है उससे कैसे दूर रहते हो? मतलब जनरली होता क्या है, जब भी हमें, मतलब टू बी स्पेसिफिक, आई टॉक अबाउट मी, मैं कोई भी एक बुक पढ़ने लेती हूँ और अगर एक नोटिफिकेशन भी आ जाता है, 10 मिनट भी हो गए, ऐसा लगता है अच्छा मोबाइल नहीं चेक किया, पहले मोबाइल चेक कर लेते हैं. मतलब हाउ डू कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम दीस सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस? जी, बहुत ही रेलेवेंट सवाल है. और ऐसा नहीं कि आई एम बॉर्न विद लॉट ऑफ फोकस, मैं भी इजीली डिस्ट्रैक्ट होता हूँ. इनफैक्ट वी ह्यूमन बीइंग्स आर नेचुरली डिस्ट्रैक्टिव पीपल. मतलब एवोल्यूशन ने हमको ऐसा बनाया है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ह्यूमन बीइंग एक्सटिंक्ट हो जाता. अब हंटर्स गैदरर्स जमाने में अगर मैं कुछ काम पे फोकस कर रहा हूँ, सपोज मैं कुकिंग कर रहा हूँ और पीछे शेर आके खड़ा है और मैं इतना फोकस हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ गया, तो इंसान वहीं पे खत्म हो जाता ना. आई एम सपोज टू गेट डिस्ट्रैक्टेड क्विकली फॉर सर्वाइवल, बट टुडे देयर इज नो नीड ऑफ सच डिस्ट्रैक्शन फॉर सर्वाइवल, बिकॉज ऑफ सोशल सिक्योरिटी, राइट? बट डिस्ट्रैक्शन होता है बिकॉज ऑफ दिस टिंग टोंग टांग नोटिफिकेशन वगैरह. तो अगर वो इजीली हमको डिस्ट्रैक्ट कर पाते हैं, तो हम भी उनको इजीली हैक कर सकते हैं. टेक में बोलता है ना, लोहा लोहे को काटता है. तो टेक्नोलॉजी अगर हमको प्रॉब्लम दे रही है, तो टेक्नोलॉजी हमको सोल्यूशन भी दे रही है. एक सिंपल बटन है हमारे मोबाइल में, हम सबके मोबाइल में, वो क्लिक करने से सब सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस बंद हो जाते हैं. इनफैक्ट मेरे घर पे रूल ही है, जो भी आएगा यहाँ पे, मेरे दोस्त लोग पढ़ने आते हैं, बुक्स पढ़ने आते हैं, अपना काम करते हैं. मेरे कुछ दोस्त है जो स्टार्टअप्स, उनका स्टार्टअप है, मैं उनको बैठने के लिए परमिशन देता हूँ. वन कंडीशन, वो टिंग टुंग टांग नहीं बजना चाहिए. जस्ट डिसेबल ऑल द नोटिफिकेशंस ऑफ योर फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, एसएमएस, ईमेल, जो भी है. इसकी इतना मुझे तो इतना पता है. और कुछ कुछ रहेगा अभी, जो नया क्लब हाउस आया है, स्नैपचैट आया है, ओके, डेटिंग एप्स, सब 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 का नोटिफिकेशन बंद करना है, राइट? पॉइंट नंबर 1. सेकंड, नाउ आई विल शो यू. कैन यू सी माय स्क्रीन? आई हैव पुट माय मोबाइल ऑन एयरप्लेन मोड. Yes. Because I want to give 100% to Samruddhi right now for 40 minutes. यहाँ पे कुछ भी हो, हम बोलते ना, अरे अर्जेंट कोई फोन आया तो अर्जेंट 15-20 साल में एक बार हो सकता है, राइट? और एंड इट्स जस्ट मैटर ऑफ 30 minutes and I'll just switch off that airplane mode. Nobody does this. I don't know why. क्योंकि वो वाइब्रेशन भी अगर मैं साइलेंट पे भी रखता हूँ तो भी वो लाइट जलता है ना मोबाइल का, और ध्यान तो जाएगा, राइट? आई पुट माई मोबाइल फोन ऑन एयरप्लेन मोड वेरी फ्रीक्वेंटली. और जिसको गुस्सा आ रहा है, अगर मुझे अगर तुरंत रिप्लाई नहीं जा रहा है व्हाट्सएप पे और मुझे दोस्त मेरे पे गुस्सा कर रहा है, तो सॉरी, मुझे ऐसे दोस्त नहीं चाहिए जिंदगी में. वहां जहाँ पे हमारा रिश्ता एक व्हाट्सएप रिप्लाई पे उसकी बुनियाद है, आई डोंट वांट सच फ्रेंड्स इन माय लाइफ. ओके, कोई आसमान नहीं टूटने वाला इफ आई रिप्लाई इट आफ्टर 40 minutes, राइट? सो ये सब उसके है. या one more I do is I keep the mobile away from me when I want to focus on some very high value tasks like reading or working on Excel sheet or making a PowerPoint. मोबाइल को दूर रखो. So cut the distraction from its very source. सामने try to focus while keeping your mobile on desk or in your pocket is invitation to unhappiness. So cut it, उसको निकाल दो. ओके, बटर चिकन सामने रखा है और नहीं खा पाओगे, ऐसा नहीं होता है. उसको हटाओ, नजरों से हटाओ, राइट?
तो मतलब बहुत ही इजी ट्रिक्स है आई फील, मतलब ऐसा कुछ बहुत डिस्ट्रैय मतलब कुछ डेंजरस करने की जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट डू डिसेबल, आपके नोटिफिकेशन को डिसेबल कर दीजिए, एयरप्लेन मोड पे रख दीजिए। आई विल श्योरली ट्राई दिस अमृत एंड आई लेट यू नो कि हाउ इट वर्क्स फॉर मी। यस यस यस, यू विल थैंक मी 1,000 टाइम्स। जिनको जिनको मैंने बोला है, दूसरे दिन उनका फोन आया है कि अमृत, लाइफ हैज बिकम सो ब्यूटीफुल आफ्टर डिसेबलिंग नोटिफिकेशंस। वो तो हमको लगता है छोटी सी चीज है, बिग डिफरेंस, मेक्स अ बिग डिफरेंस। राइट, सच में मतलब होता है, नोटिफिकेशन आए नहीं कि हम देखने जाते कि क्या है, भले ही काम का हो ना हो बट देखने जरूर जाएंगे Exactly. कि क्या हो Yeah, रहा yeah, yeah, yeah. And that brings us to a conclusion. It's not about how much time you spend on WhatsApp. No, I'm not against WhatsApp. WhatsApp is a beautiful tool. मेरे 90% काम बुकलेट के WhatsApp पे होते हैं। अभी 200 लोग काम कर रहे हैं घर पे बैठ के, मैं उनको WhatsApp पे मैसेजेस करता हूँ। फरीद करता है मेरा दोस्त, हम दोनों काम कर है। रहे हैं। जब फरीद घर से काम कर रहा था, पूरा हम WhatsApp पे एक दूसरे को काम बता रहे थे, राइट? तो इट्स अ ब्यूटीफुल टूल। सो इट्स नॉट अबाउट हाउ मच टाइम यू स्पेंड ऑन WhatsApp, इट्स अबाउट द टाइमिंग। कि किसी कोई दूसरा काम करते वक्त जब हम वो छोड़ के WhatsApp पे जाते हैं ना, दैट इज डेंजरस। स्विचिंग स्विचिंग फ्रॉम दिस टास्क वन टू WhatsApp, then again coming back, ये डेंजरस है। If you are doing this multitasking, then your productivity falls to that of a fourth standard child. इतने स्टूपिड जैसे हम काम करते, गलतियां बहुत हो जाती है। वी पे ह्यूज पेनल्टी व्हेन वी स्विच फ्रॉम टास्क वन टू टास्क टू, एंड देन ट्राइंग टू कम बैक वी हैव टू रिकैलिब्रेट आवर ब्रेन, क्योंकि अरे कहाँ कहाँ रुके थे हम, वो ढूंढना पड़ता है वापस, राइट? उसमें बहुत एनर्जी और टाइम वेस्ट होता है। मतलब इवन टुडे आई फिनिश्ड रीडिंग हाउ टू स्टॉप प्रोक्रास्टिनेशन, 21 वेज टू स्टॉप प्रोक्रास्टिनेशन। उसमें यही पॉइंट दिया है कि जब आपको लगता है आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो बट यू आरंट, आप जब फोकस आपका शिफ्ट करते हो ना, आपको 17 मिनट्स लगता है वहां पे फिर से फोकस आपका एडजस्ट करने के लिए। ओह माय मतलब गॉड, 17 मिनट्स। ये मतलब मुझे ह्यूज। तभी लगा कि सच में आई वाज डूइंग मल्टीटास्किंग, आई वाज चेकिंग नोटिफिकेशंस, यहाँ पे सामने बुक पढ़ा है, और तभी मुझे जस्ट क्लिक हुआ कि सच में 17 मिनट्स लगता है आपको आपका फोकस फिर से एडजस्ट करने के लिए। सो वी या आरंट डूइंग मल्टीटास्किंग, वी आर जस्ट फूलिंग आवरसेल्व्स, ऐसी बात है वो। या इट इज स्विच टास्किंग। we यस Multitasking एब्सोल्युटली is impossible for our brain, we actually switch task. There is simple test in the same book, उस author ने एक टेस्ट दिया है to prove that our brain is not made for multitasking. Try to play two different songs at the same time. कैसा लगेगा? You'll go mad. We यस feel so irritated, we'll feel like switching off one of the songs. That shows that we can't do two things at the same time. राइट राइट राइट। सो अमृत, अभी ये बताइए कि आप इतने बड़े बड़े बुक्स रहते हैं 200-300 पेजेस या उससे भी ज्यादा, उसको 20 मिनट्स में कैसे कन्वर्ट करते हो? मतलब फिर आप ये कैसे देखते हो कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इसको नहीं छोड़ना है, उसको नहीं छोड़ना है, तो फिर आप ये समराइज कैसे करते हो? पहले तो मैं ये दिमाग से निकाल देता हूँ कि 20 लाख लोग पढ़ने वाले हैं, उनके लिए मैं बना रहा हूँ। अगर ये सोचूंगा मैं, तो कभी नहीं बना पाऊंगा, मैं डर जाऊंगा। आई विल रीथिंक अगेन, नहीं ये किसी को पसंद आएगा, ये नहीं आएगा, ये तो रिपीटेटिव है, ये तो इररिलेवेंट है, ये तो सिर्फ कुछ लोगों को नाराज करेगा क्या। अगर ये सब सोचूंगा तो इट इज इम्पॉसिबल। आई आई हैव मेड बुकलेट फॉर ओनली वन पर्सन इन दिस वर्ल्ड, एंड दैट्स मी। मैंने मेरे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बुकलेट बनाया। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि मेरा ऑफिस नरीमन पॉइंट में, आई लिव इन ठाणे, विच इज वन कॉर्नर ऑफ मुंबई, एंड नरीमन पॉइंट इज लास्ट एंड ऑफ साउथ मुंबई। और मुझे ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लगता था बाय लोकल ट्रेन। सो 1.5 घंटा दिन के 3 घंटे मेरे कम्यूटिंग में जाते थे, एंड आई यूज्ड टू फाइंड इट वेरी वेस्ट ऑफ टाइम। कि कम्यूटिंग टाइम शुड बी मोर प्रोडक्टिव, और बहुत लोग कम्यूट करते हैं मुंबई में। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे क्या हो सकता है, तो बुक समरीज का आइडिया एंड ऑडियो समरीज। फिर ऑडियो समरीज ऑफलाइन मोड में भी होना चाहिए, क्योंकि जब ट्रेन फास्ट चलती है तो नेटवर्क चला जाता है। सो यू सी, व्हेन योर टारगेट ऑडियंस इज वेरी क्लियर, कैसे आइडियाज आते हैं हमको, राइट राइट? राइट। इट्स नॉट फॉर एवरीबडी, इट इज नॉट फॉर एवरीबडी, सिंड्रोम इज वेरी डेंजरस। तो पॉइंट नंबर वन, आई मेक द समरीज फॉर मी। बस अगर मुझे एक्साइटिंग लगा, मुझे रेलेवेंट लगा, तो मैं उसको इंक्लूड करूंगा, बाकी सबको एक्सक्लूड करूंगा। एक ही बुक में मे बी सब चैप्टर्स में नहीं लूंगा, क्योंकि कुछ कुछ रिपीटेटिव रहते हैं। अरे ये तो आइडिया वो बुक में कवर हो गया था, क्यों डालना है वापस? या एंड देन मेनी टाइम्स आई पर्सनलाइज द एग्जाम्पल्स। जो एग्जाम्पल्स अमेरिकन बैकग्राउंड में होते हैं, जो हम वी कांट रिलेट, तो उसको मैं थोड़ा इंडियनाइज करता हूँ। बर्गर की जगह वड़ा पाव डाल देता हूँ। या
लियोनार्डो डिकैप्रियो की जगह शाहरुख खान डाल देता हूँ, ये सब करता हूँ. ओके ओके, सो मतलब यही चीजें हैं जो आप यूज करते हो एंड व्हिच हेल्प्स यू इन योर टास्क्स, आई फील. Yes, yes. In fact, I insist everybody in whatever field you are, always think audience of one. Never think that there is a large audience of thousands and lakhs of people. That will make you feel overwhelmed. There is always audience of one, because at a time only one person is going to read my summary or listen. You know? See, Shah Rukh Khan's one fan will never bother about Shah Rukh Khan's another fan. He knows only one Shah Rukh Khan. Right? For Shah Rukh Khan, there are lakhs and crores of fans, right? But for one fan, there is only one fan and one Shah Rukh Khan. That's what audience of one. There is a book called Audience of One. I highly recommend it. It's written by an Indian author. Yeah. So Audience of One will help you to get started without feeling overwhelmed. कि ऐसा डर लगना सब खत्म हो जाएगा. And just think that you're doing it for yourself. So next book which I am going to read is surely Audience of One. Very good. Okay, so coming down to our last question, Amrit, tell us, do you wish to convey any sort of message for our say budding entrepreneurs, readers, किसी के लिए भी कोई message आप convey करना चाहते हो? जी बिल्कुल. I have made many new friends in last 4-5 years thanks to booklet community में readers जुड़ जाते हैं, जैसे अभी आप जुड़े हो. No, gradually our friendship will grow as we get in touch with each other. वैसे बहुत लोगों के साथ हुआ है और मैंने उनकी जर्नी देखी है, जिन लोगों ने मेरे साथ शुरू किया था 5 साल पहले. ठीक है. और मैंने देखा है कि मेहनत उन्होंने भी की जितने मेहनत मैंने की, बट दे आर रनिंग थ्रू एन आइडेंटिटी क्राइसिस बिकॉज आई स्टक टू वन थिंग. See, you know me by identifying with only one thing. मेरी आइडेंटिटी आपके दिमाग में बहुत क्लियर है कि ये बंदा बुक्स रीडिंग हैबिट के अलावा कुछ सोचता ही नहीं. बट दैट्स नॉट द ओनली थिंग. For what's more important, I said 1,000 no's to other things which might have excited me in last 5 years. Maybe fitness, maybe climate change, maybe some ideas to tackle terrorism, right, or corruption. ये सब पे मुझे करने का मन कर रहा था, बट मैंने नहीं किया. So the best way to create a big impact in one field is not to make any impact in other fields. All right, you have to contain your excitement. मराठी में कहावत है, नव्याचे 9 दिवस, मतलब नए चीज का 9 दिन तक एक्साइटमेंट रहता है. My excitement on day 1 for booklet and today, of course there will be a difference ना. तो कैसे करने का एक्साइटमेंट को, how can I keep the spark alive? By innovating vertically and not spreading horizontally. Don't do different things, do things differently. और इसलिए हर 2-3 महीने में ऐप में कुछ ना कुछ नया लाता हूँ. कुछ बेबी वो आइडिया फ्लॉप हो हिट हो, 10 में से 2-3 चलेंगे, बाकी के फेल हो जाएंगे, बट आई विल नॉट डाइवर्सिफाई हॉरिजॉन्टली और एल्स यू लूज माय आइडेंटिटी. राइट. तो फिर अमृत एग्जैक्टली करता क्या है, ये सवाल किसी को आना ही नहीं चाहिए. दैट शुड बी वेरी. सो many boys and girls, they hop from opportunity 1 to opportunity 2 if they don't get results in 7-8 months. They get impatient, and then when they keep hopping from opportunity to opportunity, they do not allow the compounding effect to show its magic. That we overestimate the results in the short term and underestimate the results in the long run. Right. We think we can change the world in 1 or 2 years, which is not possible. बट वी थिंक 10 साल में वो तो दैट इज नॉट ग्लैमरस ना. इट्स वो एड्रेनलिन रश नहीं होते 10 साल में. कौन देखा है इतना दूर का. बट 10 साल में बहुत, यू कैन चेंज द वर्ल्ड इन 10 years. राइट. आई डिड नॉट एंजॉय द वायरलिटी that the stand-up comedians and those dance videos enjoy for first 2-3 years. It was a very slow progress because it's a serious thing. It's not stand-up comedy कि तुरंत 1 लाख व्यूज हो गए, जरूर सब लोग बात कर रहे हैं. ऐसा कुछ नहीं हुआ पहले 2-3 साल के लिए. There are very few people who knew me, who knew about booklet. I had to show the faith and patience in it, right? So focus on one thing and have patience. Great things take time to happen. Bruce Lee has said wonderfully in his biography, I do not fear the man who has practiced 10,000 different kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times.
Yes, so sticking down to one thing is important. Focus shift मत कीजिए, वहां पे ही बने रहिए जहाँ पे आपका Yes. फोकस है. And there is one book named as The One Thing. Okay, wow. So I feel I have to make a list of what books I have to read next, and I'll surely take your recommendations. कौन से book पढ़ने चाहिए. Yes. And needless to mention, I have covered this book in Booklet tab as well. The One Thing. Yes, surely. So here we come to an end in conversation with Amrit. It was very nice conversation और बहुत fun loving conversation था, and most importantly बहुत knowledgeable भी था. मतलब जो लोगों को लगता है कि बुक पढ़ना एक बहुत difficult task है, अमृत ने उसको easy कर दिया है आपके लिए. उसने एक ऐप भी बनाया है, वो टेक्स्ट भी बनाता है. सो बोथ वेज, अगर आपको लगता है टेक्स्ट नहीं पढ़ना है, बोर हो रहा है, यू कैन गो फॉर ऑडियो. अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत सॉन्ग सुन लिया, अभी ऑडियो नहीं सुनना है, कुछ पढ़ते हैं, तो उसके पास टेक्स्ट समरीज भी है. सो इट वर्क्स ईदर वे. आपको जो पसंद है आप उस मीडियम से रीड कीजिए, बट रीड कीजिए. इट विल हेल्प यू टू ग्रो, इट विल हेल्प यू टू चेंज योर अप्रोचेस ऑल्सो. सो थैंक यू अमृत. Thank you for coming down to our show Thank you and so much for guiding us. inviting me and helping me to become the evangelist of my Mission Make India Read. I'm sure I'm very keen to see the output of our video because the conversation was, I really loved and enjoyed talking to you. And as a reciprocation to your kind gesture, I would like to gift my book to you, The 7 Habits of Highly Effective Readers. Okay. Yes, I can So see that. Thank just you. send me your postal address and I'll be happy to send the book to you right to your Thank you doorstep. so much, Amrut. Thank you. It really means a lot. मतलब अभी बाकी सब छोड़ के पहले ये बुक पढ़ूंगी मैं. जो फिलहाल पढ़ रही हूँ, I'll keep that aside. And actually, I was searching that day when I saw your book. I was searching कि अच्छा ये buy करते हैं. But 2-3 बुक्स पढ़े थे लिस्ट में, तो बोला पहले वो पढ़ लेते हैं, फिर नया बुक ऑर्डर करते हैं. बट नाउ अभी आप भेज रहे हो तो सबसे पहले वही पढ़ना है, बाकी सब बाद में. Great. And I promise that this book will be a gateway to all other books in your life. This book will ensure that other books will never go out of your life. They will become an integral part of your daily routine. That's my promise. I'm looking forward for that book, Amrit. Thank you so much. Yes, okay. Hello, happy reading. Bye-bye. तो जो कोई भी अमृत को कांटेक्ट करना चाहता है, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है. उनके ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. सो अगर आप उनके ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो, विच विल हेल्प यू टू रीड एंड नो मोर, ऑडियो टेक्स्ट दोनों को देखना चाहते हो, तो वो ऐप को आप डाउनलोड कीजिए. प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. एज अमृत ने भी मेंशन किया, देयर इज नो हिडन चार्जेस एट ऑल. सो उसको डाउनलोड कीजिए, कोड डालिए, एंड यू कैन हैव एक्सेस टू एन नंबर ऑफ बुक्स व्हिच अमृत हैज पोस्टेड फॉर ऑल ऑफ अस. So thank you everyone. अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू.